Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, before to go ahead, I want to share one thing from my side, that is I am not physically present with you in the school because of COVID-19 pandemic, but believe me student, I will try my best to resolve your all queries and doubts through this online classes. Okay? Student, we already discussed about the employability skill in our last session. Okay, in which we discussed communication skill, self management skill, and information and communication technology. Okay, this is comes in the employability skill. Okay, so here we are going to cover the next skill, which is called vocational skill. Okay, in this topic we are going to introduce first digital documentation. ओके, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन या फिर दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हैं हम एमएस वर्ड, जो कि आपके सिलेबस में है. ओके, तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड इन द कंप्यूटर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो हियर this is my computer screen. Okay, this is a blank computer screen, nothing is there. So you have to just go to the start button and find out the ms office package. Okay, so here you can see ms office package, expand all the ms office package, and in this ms office package you can see number of application is there. So you have to choose what? Microsoft Word 2007. Okay, just click it and it will open here. Okay, so this is the overview of ms word. Okay, now this is a document software. Okay, so companies use this software to making their documents. Okay, so here you can see in the top of this document it is written document 1. Okay, and where it is written? It is written in title bar. This area is known as title bar. Okay, in the bottom this area known as status bar. Okay, this area is known as status bar. So top one is title bar and the bottom one is status bar. Okay, on the right side you can see minimize button, maximize or restore button, and then close button. Okay student, in the left side you can see this is a quick access toolbar. Okay, and here you can see this is the office button. Okay, so this is about the pages. Okay, now here you can see home, insert, page layout, reference, mailing. What are these? These are the tabs. Okay, these are the tabs. So home, insert, page layout, reference, mailing, review, view are the tabs. In each tab you can see the ribbons. This is called a ribbon. ये सारे क्या है हमारे ribbons हैं, ठीक है ना. In each tab having ribbon. So here in ribbon this is a clipboard group. Here this is a font group. This is a paragraph group. This is a style group. Similarly in insert tab, here in this ribbon you can see the page group, table group, illustration group, link group, header, footer, text, symbols, and so on. Similarly, page layout tab, you can see themes, page setup, page background, paragraph, etc. Okay, so this is about the layout, student. Okay, so here I am going to show you another thing of this window. Okay, so here go to the home tab, and here you can see. Okay, now in the left hand side in the bottom you can see there page number 1 and page number 1. Because why so? Because there's only one page in this document. There's only one page in this document. Okay, if I want to insert another page, you can go to the insert and click on blank page. Okay, click on blank page. Now you can see here, now there's a 2 page and I am in page number 1. Okay, how many pages are there in document? 2 pages. Okay, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे insert किया blank page,
तो इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हो गए? 2 पेज हो गए। और अभी हम किस पेज पर हैं? 1 पेज पर है। अगर आपको दूसरे पेज पे जाना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपल सा दूसरे पेज पे क्लिक करेंगे तो नाउ यू आर इन पेज नंबर 2। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ठीक है ना? ठीक है, पेज नंबर 2 ऑफ 2। तो ये दूसरा पेज है इन पूरे डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या देखने जा रहे हैं? अब यहाँ होम टैब हमारे पास है। होम टैब में हमें क्या दिखता है? फॉर्मेट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और नीचे हमें देखने को मिलेगा क्या? वर्ड 1। यहाँ पे वर्ड 1 क्यों लिखा है? बिकॉज देयर इज अ स्पेस, ठीक है, लॉट्स ऑफ स्पेस इज देयर। तो नाउ अब स्पेस रिमूव किया हमने, यहाँ पे कितना? 0 दिखा रहा है। क्लियर ना? ये हमारा क्या है? एरर चेकिंग, ठीक है। ये हमारा क्या करता है? एरर चेक करता है, ग्रामेटिकल और सिंटैक्टिकल, ठीक। इसी के बाद हमने यहाँ पे राइट साइड पे देखे, यहाँ पे डिफरेंट क्या है? व्यूज है आपको। ये प्रिंट लेआउट व्यू है, ये हमारा फुल स्क्रीन व्यू है, ये वेब लेआउट है, इसके बाद आउटलाइन है एंड देन ड्राफ्ट है। ये डिफरेंट व्यूज है जो कि हम लोग सब्सिक्वेंट लेक्चर में देखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जूम सेक्शन मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें होम टैब देखना है। ओके स्टूडेंट, तो होम टैब से पहले सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम अपने फाइल को सेव कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? हम गए यहाँ ऑफिस बटन पे, हमने यहाँ पे क्लिक किया और देखिए हमारे पास रिसेंट डॉक्यूमेंट जो अभी हमने इसके पहले बनाए थे, ठीक है, वो यहाँ पे सब दिख रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं? हमने क्योंकि न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया है, हमें सेव करना है, हमें सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो आएगी उसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन नहीं होता, सिर्फ खाली क्लोज बटन होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको लोकेशन कहाँ पे लिखेगा? बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट पे। माय डॉक्यूमेंट में ही आप अपने सबसे पहले जो डिफॉल्ट आपका स्पेस होता है, जो डिफॉल्ट आपका एरिया आएगा, स्टोरेज एरिया आएगा, वो आएगा माय डॉक्यूमेंट। वहां पे आप डॉक्यूमेंट के अंदर ही अपने फाइल को सेव करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहले से हमारा सैंपल डेटा के नाम से एक फाइल हमारा सेव है। हम क्या करेंगे? तो कोई दूसरा फाइल बनाते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया टेस्ट डेटा, हमने यहाँ पे नाम पे लिखा टेस्ट डेटा। अब उसके बाद क्या कर देंगे? यहाँ पे देखो सेव एज अ टाइप, ये टाइप क्या किस टाइप का है? वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे आप फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको आप किसी भी फॉर्मेट में आपके डेटा को या फाइल को सेव कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे? वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या किया हमने? इसको हमने सेव किया। अभी हमारा डेटा कहाँ पे जाके सेव हो रहा है? डॉक्यूमेंट के अंदर जाके सेव हो रहा है, यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा था, अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? टेस्ट डेटा लिख के आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं और वापस से इस फाइल को ओपन करते हैं। ऐसे क्लोज किया इसको। अब देखिए हमारे पहले वाले स्क्रीन पे आ गए हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया था तो हम डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं। डॉक्यूमेंट ये फोल्डर हमारे पास है और इसी के अंदर हमारे पे क्या है? टेस्ट डेटा है। टेस्ट डेटा को ओपन डबल क्लिक किया, ये हमारा डेटा ओपन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये डेटा हमारा ओपन हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन ये डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर रिसेंट पे जाएंगे तो देखेंगे हमारा टेस्ट डेटा भी यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर? नाउ अब इसके बाद क्या करते हैं? अब चलते हम सीखते हैं कैसे हम होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर को यूज करेंगे। चलिए एक सिंपल सा हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस इज माय फर्स्ट एमएस वर्ड प्रोजेक्ट। देखो स्टूडेंट हमने यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखा, दिस इज माय फर्स्ट एमएस वर्ड प्रोजेक्ट। अब क्या किया हमने? उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या कर दिया? हमने कट किया। जैसे कट किया तो क्या हुआ? ये जो लाइन हमें दिख रही थी वो चली गई यहाँ से, इसका मतलब इट्स गॉन नाउ। बट ये कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव है। अब यू हैव टू जस्ट पेस्ट इट, यू कैन पेस्ट इट, ओके। दिस इज वे यू कैन पेस्ट मेनी टाइम्स। एक बार कॉपी करने के बाद, कट करने के बाद आप कितनी भी बार उसको पेस्ट कर सकते हैं, या कॉपी और कट करने के बाद कितनी बार भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा कट। अब इसके बाद अगर मान लेते हैं इसको हटाते हैं, सिर्फ एक लाइन रखते हैं। अब यहाँ से हम कॉपी करते हैं, तो कॉपी और कट में क्या डिफरेंस देखिएगा। हमने क्या किया? अपने स्टेटमेंट को क्या किया? कॉपी किया, सिलेक्ट किया एंड देन कॉपी। कॉपी में क्या हुआ? हमारा स्टेटमेंट यहीं पे लिखा है, कहीं गया नहीं, इट इज नॉट गॉन। देन अभी हमने क्या किया? पेस्ट किया, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है ना। कितनी बार भी हम कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास बहुत सारे लाइन आ गए हैं। अब हमारे पास हमको क्या सीखना है? फॉर्मेट पेंटर देखना है। फॉर्मेट पेंटर हमारा क्या है? देखिए यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर करता है क्या, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमने पहले लाइन को क्या किया? सेलेक्ट किया। करने के बाद हम क्या गए? हम बोल्ड पे हमने क्लिक किया, बोल्ड हो गया। इटैलिक पे क्लिक किया, ये हमारे टूल्स हैं, और अंडरलाइन पे क्लिक किया।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया, यहाँ पे 11 की जगह हमने क्या किया, हमने 18 कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सब फॉन्ट का कलर टेक्स्ट कलर में चेंज किया तो रेड हो गया। ठीक है, तो ये हमने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की इस पहले वाले अपने टेक्स्ट पर। अब मान लेते हैं हमारा हमने फॉर्मेटिंग करने के बाद हमें कुछ अर्जेंट काम आया और हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। जब क्लोज करेंगे क्या पूछ रहा है आपसे, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू द टेस्ट डेटा, जो अभी ना चेंजेस किए हैं आपने उसको वापस सेव कर जाते हैं, तो आपने बोला यस। अगर आप यस करेंगे तो सेव हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं सेव होगा। ठीक है, यानी कि फॉर्मेटिंग आपकी सेव नहीं होगा, डेटा आपका जैसे पहला था वैसे ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे कहा नहीं हमको सेव करना, हमने सेव कर दिया और ये हमारा विंडो क्लोज हो जाएगा। फिर अब इस विंडो को ओपन करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, देखिए ऑलरेडी हम यहाँ पर हैं, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमारा डेटा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। देखिए हमने सेव किया था तो ये हमारी लाइन पहले से ऐसे ही है। अब चाहते हैं हम कि जो भी फॉर्मेटिंग पहले वाली लाइन को अप्लाई हुई है वो हमारे बाकी भी लाइन को अप्लाई हो जाए। कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर फॉर्मेट पेंटर पे गए, क्लिक किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे हमारे पास ब्रश बन के आ गया। अब जहां जिस लाइन पे हम ब्रश करेंगे वो हमारा फॉर्मेट पेंटर हो गया। ठीक है, वापस से देखिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, हम चाहते हैं कि इस लाइन को हो, इस वाली लाइन को हो जाए। ठीक है, इस पे किया, ठीक, ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों लाइन पे अलग फॉर्मेट हो, चलिए इसको अलग फॉर्मेट कर लेते हैं। तो हमने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको इस बार इसका फॉर्मेट की जगह हमने इसका ये जो फॉन्ट फैमिली हमने इसको चेंज कर दिया, हमने इसको ये कर दिया। ठीक है, कलर्स में हमने इसको ग्रीन कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, चलिए हमने ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा इसका स्टाइल जो है इटैलिक कर देते हैं इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि जो स्टाइल और फॉर्मेटिंग इस लाइन को हुई है वही फॉर्मेटिंग हमारे इस लाइन को भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे एंड देन वापस से आके देखिए प्लस का निशान बन गया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके ओपन इसको रख देंगे। सिमिलरली यहाँ वापस से जाते हैं फॉर्मेट पे और इस बार हमने इसको वापस से शुरू कर दिया। तो देखो स्टूडेंट, हमने कैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जो हमने कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन और फॉर्मेट पेंटर को हमने देखा बेटा। अब क्या करना है, अब इसको क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद इट इज आस्किंग व्हाट डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। जितनी बार भी आप इसमें एडिट करेंगे, डॉक्यूमेंट में एडिट करेंगे और क्लोज करेंगे, आपसे बार बार आपसे पूछेगा। आप चाहते हैं ये ना पूछे, क्या करना पड़ेगा आपको, तुरंत यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस बार यहाँ पर क्या रखा है, सेव। अब ये एरिया क्विक एक्सेस बार क्यों कहलाता है, बिकॉज अब अगर आपको सेव करना होता तो आपको ऑप्शन बटन में क्लिक करना होता, फिर इसके अंदर जाना पड़ता यहाँ पर सेव करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सेव ऑप्शन आपको यहीं पे आ गया। ठीक है, इसलिए इसको क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। देखिए इसमें चीजें और अब ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू है, स्पेलिंग ग्रामर है, अंडू रीडू तो ऐड ही है। ठीक है, ओपन है ईमेल, चलो हमने ईमेल ऐड कर लिया। इसके अलावा अगर हमने कुछ और है ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर ऐड कर लिया। ठीक है, तो यहीं से हम डायरेक्टली यहीं से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है चीजों को, तो ये हमारा क्विक एक्सेस बार, इसको रिमूव करना है, यहाँ से वापस से जाइए, अनचेक कर दीजिए, जैसे कि अनचेक इस पे किया और उसके बाद हमने स्पेलिंग ग्रामर पे किया, सेव पे रहने देते हैं। ठीक है, जैसा था पहले वैसा हमारा हो गया। तो हम यहाँ से क्विक एक्सेस बार में कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह से हमने क्या देखा, हमने डॉक्यूमेंट में हमने देखा। अब हम बात करेंगे आपके एक्सरसाइज की। तो आपको आपके बुक में पेज नंबर 91 पे चैप्टर मिलेगा। पेज नंबर 91 पे चैप्टर का नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एलिमेंट्री डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आपको चैप्टर मिलेगा। तो आपको मैं एक एक्सरसाइज असाइन कर रहा हूं, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। पहला पेज, फर्स्ट पेज आप पढ़ेंगे एंड सेकंड पेज आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यू हैव टू डिस्क्राइब अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ठीक है, आई रिपीट, आपको क्वेश्चन क्या लिखना है, आपको आंसर क्या लिखना है। ठीक है, किसके बारे में लिखना है, यू हैव टू डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। इसका आपको आंसर आपके क्लास वर्क कॉपी में लिखना है बेटा। ठीक है, और होमवर्क के लिए क्या करना है, होमवर्क में आपको सिर्फ खाली स्टडी करना है, क्योंकि अभी हमारा पूरा चैप्टर हुआ नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं देंगे। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, अभी आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, थॉरोली, और उसके बाद फिर उसका होमवर्क डिसाइड करेंगे। तो क्लास वर्क के लिए एक वापस से क्लास वर्क के लिए क्या करना है, यू हैव टू डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, जो आपके बुक में दिया है उसी के बारे में आपको लिखना है बेटा। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और ऑनलाइन चैप्टर, ऑनलाइन लेक्चर। ठीक है, so thank you for watching student, we will continue our next lecture in the next video. Okay, till then thank you for watching student.